सीधा रोड इधर ही था घूमने के लिए तेरा, मिलिंद पटक के मारना मैंने उल्टा करके, भगवान कसम तेरे को कह रहा हूं मैं, खोपड़ी मत खराब कर। ओके, तो yesterday we were discussing about the Mahajanpadas, right? The era of 600 to 300 BC, right? And what prominent events occurred during this era? The first was right, second right, and third I will not say the origin of heterodox thought. Why? So because Jainism was not evolved in 600 BC. ये उससे पहले का है, right? Because near 600 BC we shall found two people, Parshvanath and Mahavir ji. So Parshvanath was there and Mahavir ji, but before that Jain Dharma already evolved through Rishabhdeva, right? And Rishabhdeva was of Purana type, right? Purana में आपको पहला नंबर किसका मिलता है? Rishabhdeva. So Rishabhdeva was actually the founder of Jain Dharma, right? So these three events occurred between 600 to 300 BC. Rise of Mahajanpadas, foreign invasion, and rise of heterodox sect. इस वर्ड को संभाल के रखना, right? Because at that time there was no specific territorial boundary of India, right? तो हम इन्वेजन कहां से ले रहे हैं? Not with Pakistan, direct from Persia, Greek, right? Or Central Asia, West Asia, Burma, Sri Lanka. This is called the foreign land, right? बाकी foreign land नहीं है, because Gandhar, Pakistan, Kamboj, this Rajouri. So this actually the Pakistan, the part of Pakistan that was the part of Indian subcontinent. So beyond the Indian subcontinent, we shall take the word foreign invasion. उससे पहले नहीं लेंगे, right? So rise of Mahajanpadas, foreign invasion, rise of heterodox sects. Three important events occurred between 600 to 300 BC. And why? Why? Due to change in all the spheres, in economic, social, political, and belief system, or called as in religious. When we shall discuss about the religion, जब religion का बात करेंगे, we shall use two words, orthodox and heterodox. Orthodox, which is going on, right, based on rituals, this is called orthodox, right? Heterodox, which is not based on certain rituals which are already prevailing, right? A new rites. So one will be ortho and second will be hetero. So orthodox we shall use for Vedic religion. इसके लिए यूज करेंगे वैदिक रिलीजन, जो अभी चलता है उसके लिए क्या वर्ड आएगा? ऑर्थोडॉक्स. और नए के लिए क्या आ जाएगा? हेटेरोडॉक्स. सो ऑर्थोडॉक्स, हेटेरो किसके लिए? बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविक्स, उनके लिए. क्लियर? Now, so as we discussed that this was an era of change, complete change. First change in economy in terms of urbanization. First term, urbanization, right? Second term, industrialization. I'm simply बात करूं तुमसे, पहली चीज क्या हो रही है? अर्बनाइजेशन. सेकंड क्या हो रहा है इस पीरियड में? स्पेशलाइजेशन. इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रीज, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, राइट? एंड एज वी डिस्कस स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट्स, एंड देन व्हेन इट विल बी हेरिडिटरी, दैट विल बी द इमरजेंस ऑफ कास्ट सिस्टम. जाति कैसे पैदा होगा? कि जब आपका ऑक्यूपेशन, व्यवसाय
हेरिडिटरी होगा, राइट, और स्पेशलाइज्ड होगा कि एक परिवार अब एक काम करेगा। हाँ आगे आप स्पेशलाइज्ड में आगे इमरजेंस ऑफ जाति सिस्टम और कास्टा सिस्टम स्टार्ट हो गया। वर्ना इज गोइंग ऑन, वर्ना सिस्टम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गोइंग ऑन चल रहा है, राइट, बट नाउ वर्ना विल बी इररिलेवेंट। एक टाइम के बाद में वर्ना इररिलेवेंट हो जाएगा और खड़ा कौन होगा? कास्ट सिस्टम, बिकॉज वर्ना इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, राइट, बट कास्ट विल बेस्ड ऑन अर्थ। वर्ण, जाति नहीं, वर्ण, इसमें हेरिडिटरी नहीं है, स्पेशलाइज्ड है, हेरिडिटरी नहीं है। हेरिडिटरी कौन सा होता है बताना? बट ये नहीं है कि हेरिडिटरी है कि ये यही करेगा। यू आर नॉट कन्फाइंड टू योर ऑक्यूपेशन कि यू कैन डू दिस ओनली, नॉट दैट। एक कॉबलर कॉबलर ही रहेगा, स्मिथ आयन स्मिथ नहीं, नहीं, दे कैन चेंज, दे कुड चेंज बट नॉट नाउ। वैदिक में कहां थे? तो उसको वर्णा बोला है ना, अब कास्टा है, बर्थ बेस आ गया है। कौन सा वैदिक? ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक? ऋग्वैदिक में कौन से आपके पास में ऑक्यूपेशन है? सिर्फ 4, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं। वैदिक में स्पेशलाइजेशन है बट नॉट अटैच विद बर्थ। कहां है? कहां लिखा हुआ है कि इसका बेटा यही बनेगा? एंड एज आई टोल्ड यू, लेटर वैदिक पीरियड का लास्ट स्टेज में आ रहे हैं, कन्फाइंड हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्ना, नॉट जाति। जाति यहां स्टार्ट होगा। इमरजेंस ऑफ कास्ट सिस्टम 600 बीसी का करेक्टर है, राइट, कास्ट सिस्टम। वर्ना इज देयर बट नाउ वर्ना विल बी इररिलेवेंट। क्यों? कास्टा बढ़ रहा है, तो ब्राह्मण कास्ट भी है और वर्ण भी है। आप कौन है? मैं ब्राह्मण हूं। अब इस ब्राह्मण को मैं क्या मानूं? वर्ण की कास्ट। एक बात है, इफ आई एम ब्राह्मण बाई बर्थ तो ये क्या हुआ? कास्ट। इफ आई एम ब्राह्मण बाई ऑक्यूपेशन, वर्ण, राइट, वर्ण, ऑक्यूपेशन। बट अब क्या हो गया? ऑक्यूपेशन इज हेरिडिटरी, तो अब तो रिलेवेंसी खत्म हो गया। अब मैं चाहे ब्राह्मण का काम करूं चाहे ना करूं, मैं कौन हूंगा? ब्राह्मण, राइट। चाहे मैं काम कर रहा हूं चाहे नहीं कर रहा हूं, मैं हूं कौन? तो देन इट इज कॉल्ड एज कास्टा। ये है जाति मॉडल, वो था वर्ण मॉडल। देन वर्ण टू जाति। अब वर्ण टू जाति कहां से स्टार्ट होगा? जहां पर आपका सूत्र में नंबर बढ़े, अनुलोमा प्रतिलोमा शुरू हुआ। व्हाट विल हैपन व्हेन दिस विल हैपन ना? अब इसको क्या करेंगे? धर्मशास्त्र इसको स्ट्रिक्ट कर देंगे। क्यों? न्यू कास्ट आर देयर। अब वो कास्ट ना तो किसी वर्ण है ना कुछ और है, राइट। तो उन्होंने अनुलोमा प्रतिलोमा को देखते हुए एक सिस्टम बनाया। अनुलोमा इज अलाउड, प्रतिलोमा इज नॉट अलाउड। सिस्टम आया अनुलोमा, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी। तो दिस हाइपर एंड हाइपोगैमी अब क्या करेंगे? उस सिस्टम को और ज्यादा प्योरिटी की तरफ ले जाएंगे और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देंगे, राइट। प्रतिलोमा नॉट एक्सेप्टेड, अनुलोमा एक्सेप्टेड बट विद सर्टेन कंडीशंस। अब जाति मजबूत हो जाएगी। अब इसको बाई बर्थ कर देंगे, राइट। अब बाई बर्थ से क्या हुआ कि इफ ए हाइपरगैमी इज देयर और हाइपोगैमी देयर, अनुलोम प्रतिलोम है, तो उनका बच्चा भी प्रतिलोमा ही होगा, राइट, टू डिस्करेज दिस टाइम ऑफ मिक्सिंग ऑफ वर्णाज। कास्टिंग का सिस्टम ही मिक्सिंग ऑफ वर्णाज में है। तो व्हेन वी शैल डिस्कस अबाउट द जाति मॉडल, वर्णा मॉडल, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे मिक्सिंग ऑफ वर्णा जाति की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि इनको तुम कहां रखोगे? ना तो ये ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है। वाइस ऑफ वुमन अलग वर्ण, मेल अलग वर्ण, जब दोनों मिक्स करेंगे तो इसको तुम कौन से वर्ण में रखोगे, राइट। सो वर्ण मॉडल जाति मॉडल में कैसे कन्वर्ट होगा? मिक्सिंग ऑफ वर्ण, राइट। और जाति का नया मॉडल कैसे बनेगा? ऑक्यूपेशन हेरिडेटरी। मॉडल्स आर देयर फॉर जाति, वन बाय वर्ण, वन बाय जाति मॉडल, राइट। ये दो मॉडल निकल के बाहर आएंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ वर्ण के लिए जाति बनाना पड़ेगा तुमको, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वाज अर्बनाइजेशन, सेकंड स्पेशलाइजेशन, थर्ड क्या था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज पॉलिटिकल पैट्रोनेज। पॉलिटिकल पैट्रोनेज, दिस पॉलिटिकल पैट्रोनेज बहुत बड़ा बात हो गया। सो अर्बनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, पैट्रोनेज, उसके बाद
यस, सरप्लस। एंड उसके ऊपर एक सबसे बड़ी बात आ गई, लिटरेट सोसाइटी। लिटरेट सोसाइटी, एज वी डिस्कस्ड इन वैदिक पीरियड, वेदाज वर नॉट फॉर कॉमनर्स। वेदा आम लोगों के लिए नहीं थे, तार्किक संस्कृत हरेक के लिए नहीं थे। दिस वॉज अ टाइम व्हेन पीपल बिकेम लिटरेट। लैंग्वेज बाहर आ रहा है, और वो स्क्रिप्ट किस नाम से आएगा? राइट, ब्राह्मी। लैंग्वेज पाली, प्राकृत, अपभ्रंशा। तो पहली कौन सी? पाली और प्राकृत। बुद्धिस्ट कौन सी लैंग्वेज लेगा? पाली। महावीर कौन सी लेंगे? प्राकृता, अपभ्रंशा। सो अपार्ट फ्रॉम संस्कृत, रीजनल लैंग्वेजेस हैज बीन डेवलप्ड। और उन्होंने किसको फायदा दिया? टू स्प्रेड ओवर द न्यू रिलीजन्स। अब जिसको वैदिक पढ़ना उसको क्या आना चाहिए? उपनयन संस्कार होगा, तभी आप गुरुकुल में जाओगे, वेद आरंभ करोगे, और वेद के लिए वेदांग पढ़ना पड़ेगा, और वेदांग में व्याकरण है। राइट? सो टू नो ग्रामर तुमको वेद पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तुम्हें संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। तो संस्कृत अलीट क्लास का हो गया, ब्राह्मण कन्फाइड टू ब्राह्मण और द्विजा, क्षत्रिय, वैश्य। बट जो बाकी शूद्र मन है, कहां करेंगे? वो वैश्या विच इज कन्फाइंड टू दी ट्रेड ओनली, जो शुरू से पैदा होती ट्रेड का काम कर रहे हैं, और द इंडस्ट्रीज पीपल, द क्राफ्ट पीपल, जो विच आर स्पेशलाइज्ड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप, जिनको एक ही काम करना है कि भाई सोने का काम करना है, क्ले मेकिंग करो, मेटल वर्क करो, वर्क, जो तुमको बनाना है बनाओ। तो दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेदास। तो वो क्या करेंगे? दिस लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। सो वाई all the addresses or sermons given by the Buddha, बुद्धा ने जितने भी उपदेश दिए किस भाषा में दिए? पाली। महावीर किस में? प्राकृत। Why? to reach up to the commoners, to reach up to the commoners, आम लोगों को लिया। अब उनके पूरे उसमें देखो, आपको वैश्यास मिलेंगे, आपको वैश्यास मिलेंगे, आपको क्षत्रियास मिलेंगे, आपको कौन मिलेगा? शूद्रास मिलेंगे। क्लियर? बेस, उन्होंने बेस को पकड़ा। क्लियर? द कॉमन लैंग्वेज। जस्ट सी द रीजनल लीडर्स। कभी किसी रीजनल लीडर का भाषण सुनो, वो कभी हिंदी इंग्लिश में नहीं देगा, रीजनल लैंग्वेज। सो ये टाइम था लिटरेट सोसाइटी का। तो सोसाइटी बिकेम लिटरेट। तो लिटरेट सोसाइटी में अब टेक्स्ट बाहर आए, नए नए बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिज्म टेक्स्ट, ये टेक्स्ट चलना शुरू हुए। लोगों ने पढ़ना शुरू किया, भोजपत्र पे लिखना शुरू किया। नाउ दिस नॉट कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक वर्ण, खाली ब्राह्मण नहीं रहे, सब लिख रहे हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हर कोई लिख रहा है, जैन टेक्स्ट हर कोई लिख रहा है। सो नाउ ए न्यू क्लास अरोज विद द लिटरेरी माइंड। पढ़ने लोग आ गए, और इसका फायदा किसको मिला? हेटेरोडॉक्स सेक्ट को। पॉलिटिकल पैटर्न्स का मतलब हो गया कि द न्यू हेटेरोसेक्ट्स जो आए, उनको पैट्रोनेज कौन दे रहा है? यही राजनीति दे रहे। लाइक टू मेन महाजन पदास, मगधा एंड अंगा, इन दोनों को कहा जाता था कि दीज आर नॉट सेक्रेड, वो पवित्र नहीं है। वाई सो? बिकॉज देयर वाज नॉन वैदिक आर्यंस, राइट, और द इनहेबिटेंट पीपल, सो दे वर नॉट फ्रॉम द वैदिक ट्रेडिशन। तो वैदिक इस जगह को प्योर नहीं मानते थे कि ये अच्छी जगह नहीं है। एंड दोज पीपल, उनको क्या था? सबसे बड़ी बात थी कि दे वर द मेन रीजन ऑफ स्प्रेडिंग द न्यू रिलीजन। बुद्धा एंड जैनिज्म का सबसे बड़ा एरिया कौन सा बना? मगधा, बिंबिसार, अजात शत्रु, राइट, अंगा जो मगध के साथ चला। उसके बाद कौन आया? अवंती, चंड प्रद्योत, राइट। दीज वर द एरियाज। नाउ इन्होंने सपोर्ट किया। किसने सपोर्ट किया? काशी सपोर्ट किया, बनारस, राइट। पहला जो मोनेस्ट्री बनेगा बुद्ध का, वो कहां बनेगा? जैतवन, श्रावस्ती। क्लियर? तो ये सब लोगों ने इनको सपोर्ट किया। और सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? गणाजी, गणसंगा, मल्ला, वज्जी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया इनको। सो पॉलिटिकल पैट्रोनेज, स्पेशलाइज इन क्राफ्ट्स, अर्बनाइजेशन, लिटरेरी सोसाइटी एंड सरप्लस, ये इस काल की सबसे बड़ा फीचर रहा।
और इस फीचर ने क्या पैदा किया? अ रिवोल्यूशन, कंप्लीट चेंज इन लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, बिलीफ, रिलीजन। तो आपके पास में दो पॉलिटिकल ऑर्डर निकल के आते हैं। फर्स्ट, जो चीफटेंस थे, राइट, और दी जो लीडर्स, मुखिया थे, वो अब क्या बन रहे हैं? दे आर गोइंग विद दी किंग, चक्रवर्तीन, राइट, चक्रवर्तीन, सार्वभौमा।